جو حضور کے بارے میں بات کرے تو قسم خدا کی اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات کرے تو برداشت کر لیجئے گا، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے، جہاں حضور کی عزت کی بات آ جائے، وہاں پر ایک ہی بات ہے کہ یہ مسئلہ اتنا نازک ہے، عالم کو بتایا جائے گا، اب ختم نبوت کا پرچم ہر سمت اٹھایا جائے گا، اب جنگ یمامہ کا منظر دنیا کو دکھایا جائے گا، یہاں بات ہے ان کی عزت کی، یہاں سر کو کٹایا جائے گا۔ کہ میں اپنی بات کروں تو میری بات آپ نے نہیں سننی، اپنی بات کروں تو نہیں سننی، آپ آپس میں بات کر سکتے ہیں، گوسپس کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اپنی، جی میں بہت اچھا ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں یہ کیا ہوں، وہ کیا وہ کیا وہ کیا، اپنی تعریفیں کروں گا نا، تو آپ آپس میں باتیں اپنی کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں گناہ بھی، اس بندہ یہ تو بیچارہ اپنی بات کر رہا ہے اور یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے، یہ بات نہیں سنیں گے۔ اگر میں اپنے والد صاحب کی بات کروں آپ پھر بھی بول سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ میں اپنی والدہ کی بات کروں آپ کو پھر بھی بولنے کی اجازت ہے، لیکن اگر میں بات کروں امام الانبیاء کی، وجہ تخلیق کے کائنات کی، تو میرا خیال ہے پھر بولنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے، بھی میں اپنی بات نہیں کرتا، بات وہ کر رہا ہوں جو اللہ نے کی ہے۔ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی کائنات میں ذات ہے؟ جو اللہ کی ذات بات کر دیتی ہے، کیا اس بات جیسی کوئی بات ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالی نے ایک واضح طور پر دلیل دے دی کہ مومنوں کبھی بھی اپنی آوازیں حضور کی آواز سے بلند نہ کرنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، غارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام مومنین کو بتا دیا کہ دنیا کی باتیں چلتی رہیں تو چلتی رہیں، لیکن جب بات محبوب کائنات کی آ جائے، جہاں پہ تذکرہ رسول کائنات کا چھڑ جائے، جہاں پر ناموس رسالت کی بات آ جائے، جہاں پر تحفظ ختم نبوت کی بات آ جائے، جہاں پر مہر نبوت کی عزت کی بات آ جائے، تو وہاں پر سب کی زبانیں خاموش ہونی چاہیے، آنکھیں کھل جانی چاہیے، کانوں کی کھڑکیاں کھل جانی چاہیے، دماغ کی گندگی ختم ہو جانی چاہیے، سارے برے خیالات کو دور کر دیا جائے، کیونکہ وہاں بات کسی عام شخص کی نہیں ہو رہی ہے، تیرے اور میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے، کہ جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جنت ملے گی۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا کافر بتاؤ، کوئی ایسا حضور کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو اور وہ یہ تقاضا کرے کہ مجھے جنت ملے گی، کوئی بندہ مجھے بتاؤ۔ کوئی بندہ ہے، کافر ہے، ساری زندگی اس نے اچھے اعمال کیے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، یتیموں کی مدد کی ہے، بہت اچھے کام کیے ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں، کیا جنت میں جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ، اس پر بھی عمل پیرا ہونا ضروری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہاں تک ہر کافر کا بھی ایمان ہے اللہ ہے، یہودی بھی سمجھتے ہیں، کرسچنز بھی سمجھتے ہیں، ہندو بھی سمجھتے ہیں، سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ یاد رکھ لیں، قیامت والے دن اس ذات کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا جس ذات نے حضور کی ذات کو تسلیم نہ کیا ہوگا۔ چھوٹی سی بات ہے،
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, यानी वाकया लंबा है, मैं शॉर्ट इसलिए बयान कर रहा हूं, टाइम थोड़ा है। आपके पास दो शख्स आते हैं, आकर फैसला लेकर आते हैं। एक मुनाफिक होता मुसलमान है, मुनाफिक मुर्तद, और एक काफिर होता है। फैसला वो पहले हुजूर की बारगाह में लेकर जाते हैं, हुजूर फैसला फरमाते हैं उस काफिर के लिए, उसके हक में कि ये सच्चा है। तो वो दूसरे बंदे को वो फैसला जो है, आप लोग पढ़े हुए हैं, आपको पता है, तो फैसला मंजूर नहीं होता। वो कहते हैं जी अब उमर फरूक की बारगाह में जाएं। वो हजरत उमर फरूक की बारगाह में आ जाते हैं, आकर कहते हैं कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये फैसला है और इसका फैसला फरमा दें। तो वो काफिर बोलकर कहता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये जो फैसला है ना, आपसे पहले हुजूर फैसला कर चुके हैं, फैसला हो चुका है, और मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे ये कबूल है, इस बंदे को कबूल नहीं है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ नहीं बोलते, खामोश हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर से तलवार निकालते हैं, म्यान से बाहर होती है, आते ही उस मुर्तद का गला काट कर जमीन पर फेंक देते हैं और फिर बोलते हैं कि जिसको मुस्तफा का फैसला कबूल नहीं होता, उमर कौन होता है उसका फैसला करने वाला? फिर उसका फैसला उमर नहीं करेगा, उसका फैसला उमर की तलवार किया करती है। यहां से समझ आ जाना चाहिए कि कायनात के अंदर सिर्फ एक ही जुबान ऐसी है जिसका फैसला चलेगा, एक ही कलम ऐसा है जिसका फैसला चलेगा, और वो कलम मेरे करीम आका इमामुल अंबिया का कलम है। वो जुबान मेरे मुस्तफा करीम की जुबान है, वो अल्फाज मेरे मुस्तफा करीम के अल्फाज हैं। जैसे कायनात के अंदर, याद रखें, जैसे कायनात के अंदर, कुल कायनात के अंदर, अल्लाह की बनाई हुई कायनात के अंदर कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, इसी तरह मेरे करीम आका इमामुल अंबिया के बाद कोई दूसरा नबी भी नहीं हो सकता। और ये बात को तस्लीम कर लें, जिस पर दलाइल भी मुमकिन नहीं है, दलाइल की भी जरूरत नहीं है। मैं अक्सर बात करता हूं, हमजा भाई बात कर रहे थे कि कोई भी बात हो उस पर आप दलील मांग सकते हैं। कोई बंदा आकर कोई बात करता है, जनाब ये बात है, तो उससे आप दलील मांग सकते हैं, इसकी दलील दें। कोई बंदा आकर कहे जी मैं मुफ्ती आजम हूं, आप उसे कहें जी मुफ्ती होने की दलील दो, आपका राइट है, मांग सकते हो, कोई गुनाह नहीं है। कोई बंदा अगर कहता है जनाब मैं पीएचडी स्कॉलर हूं, आप उसे दलील मांग सकते हैं, भाई डिग्री दिखाओ, दलील दो, कैसे हो, आपकी शख्सियत तो नजर नहीं आता। लेकिन बात जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की हो, कोई बंदा आकर ये बकवास कर दे कि मैं नबी हूं, तो तौबा माज़अल्लाह, कभी उससे ये ना दलील मांगना कि बताओ दलील दो तुम नबी हो। दलील नहीं है, दलील एक ही है, हुजूर के बाद कोई नहीं है, हुजूर के बाद कोई नहीं है। वो 100 दलीलें देता रहो, उसे तेरी दलील की जरूरत नहीं है। हमें मुस्तफा करीम की जात से बात करनी है। हमारे प्यारे नबी ने जब फरमा दिया कि अना खातमन नबीयीना ला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तो फिर वहां पे तेरी दलील का मायने नहीं है, तेरी दलील का कोई मतलब नहीं है, तेरी दलील कुछ मायने नहीं रखती है। तो मेरी बात मेरे बच्चों याद रखना कि हम भी आप लोगों की तरह इन्हीं यूनिवर्सिटियों में, इन्हीं कॉलेजेस में पढ़ के आए हैं। ये ना समझे कि मौलवी हजरात हैं, ये खतीब हैं, कोई तकरीर कर रहा है, ये तकरीर नहीं है बेटा, ये तकरीर नहीं है, ये एक खत्म नबूवत का इंजेक्शन है जो हम इस जनरेशन को लगाना चाह रहे हैं, ताकि आने वाली नस्लें बर्बाद ना हो जाएं, ताकि आने वाली आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, ताकि आने वाला आपका जो दौर है, आने वाले आप कौम के मामार हैं। आज हम यहां खड़े हैं, हम ये फरीजा आपको सौंप कर जा रहे हैं, हम अपना मकसद पूरा करके जा रहे हैं। ये फरीजा अब आपने इंजाम देना है, ये फर्ज अब आपके जिम्मे आ गया, आपने करना है इसको, ये याद रख लें। और इस वक्त कायनात के अंदर कभी भी ये याद रखें कि ये जो जाहिल कौमें हैं ना, ये अब वर्गला रही हैं मुसलमान के इस पढ़े लिखे नौजवान को, कि जनाब देखें इस तरीके से ये मामलात हैं, इस तरीके से ये मामलात हैं। जिस तरह आजकल कुछ लोग जो है ना वो मिर्जा जेलमी को मानने के बड़े शौकीन हुए हैं, कुछ लोग उसको भी मानते हैं। अब रीजंस क्या हैं?
यानी जो हुजूर के असहाब को बुरा कहे, यहां तक कि हुजूर की जात के बारे में भी अल्फाज बुरे बयान करे, तो हम तो कसम खुदा की अपने मेरे और आपके बाप को कोई गाली दे तो क्या करोगे? क्या करोगे? दिल करता है इसको कत्ल कर दूं, मेरे बाप को गाली देता है। कोई मां को गाली दे तो क्या करोगे? दिल करता है इसको मैं कत्ल कर दूं। आप अंदाजा करें, आप अंदाजा करें, कोई मां को कहता है, कोई बाप को कहता है, कसम खुदा की कायनात के सारे बाप कुर्बान हो जाएं हुजूर के तलवों पर, कायनात की सारी माएं कुर्बान हो जाएं हुजूर के तलवों पर। एक चीज याद रख लें, जहां पर हुजूर की जात आ जाती है तो कसम खुदा की मेरे और करीम आपके नबी ने फरमाया कि कोई भी शख्स तब तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने मां, अपने बाप, अपनी औलाद, अपनी अहलो अयाल से ज्यादा मुझ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना कर ले। ये हुजूर की हदीस पाक है कि वो मोमिन मोमिन हो ही नहीं सकता। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है। हुजूर की जुबान से अल्फाज निकले, तीर कमान से निकल चुका है, वापस नहीं लौट सकता। ये वो तीर जो हुजूर की जुबान से निकला वापस नहीं लौट सकता। एक चीज याद रखें, ये मामला एक अनपढ़ जाहिल आदमी को बंदा सिखा देना कि कोई बंदा आकर कहे कि नबी जैसा कोई और हो सकता है, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई और हो सकता है, और वो जाहिल आदमी भी कहेगा इससे आगे बात ना करना, वो मेरे नबी हैं, इससे आगे मैं सुनना नहीं चाहता, वो मेरे आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अल्लाह की जात कायनात से ऊपर है। अगर अल्लाह की जात के नीचे कोई जात है तो मुस्तफा की जात है। कोई नबी, कोई रसूल, कायनात के अंदर कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर भी मुस्तफा की जात को नहीं पहुंच सकता। तुम उसकी बात कर रहे हो जिसका उम्मती बनने के लिए नबी भी दुआएं करते रहे, उसकी बात कर रहे हो, उसके बारे में बकवास कर रहे हो। तो बेटा आज का जो नशिस्त है वो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए है कि आज के दौर में सबसे बड़ा फितना कादियानियत है, मिर्जाइयत है। ये वो लानत है जो आज हमारे मुआशरे को घुन की तरह खा रही है। और ये लानत वो कहां पे फैला रहे हैं? हमारे नौजवानों में फैला रहे हैं, हमारे कॉलेजेस में फैला रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में फैला रहे हैं। तो बेटा ये फरीजा है अपने दिमाग में बिठा लेना कि कायनात के अंदर जिस तरह दूसरा बाप नहीं हो सकता, किसी का बाप दूसरा नहीं हो सकता, वो हलाली नहीं है जिसका बाप दो हो, हलाली तो नहीं है ना, वो सादा सी बात है ना। हलाल के बंदे का एक ही बाप होता है, वो किसी को दूसरा बाप तस्लीम नहीं करता। मैं कल भी बात की, अभी आपसे पहले जो नशिस्त है वहां पे बात की, क्योंकि बंदा एंटर हो और आपसे आकर कहे मैं आपका बाप हूं तो हम मानेंगे? कोई भी वो सफाई करने वाला कोई जाहिल आदमी आकर कहे, कोई गंदा सा आदमी आकर यहां से आकर खड़ा हो जाए, चाहे कुछ खूबसूरत भी हो, तो वो कहे जी मैं तुम्हारा बाप हूं, मान लोगे? नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। तो जब हम बाहर से आने वाले किसी दज्जाल, किसी झूठे, किसी ऐसे बास शख्स को अपना बाप तस्लीम नहीं करते, तो कसम खुदा की हम उस मिर्जे काणे को अपना नबी कैसे तस्लीम कर सकते? उस गुसल खाने में मरने वाले, अब हमजा साहब तो कुछ और ही कहते होते हैं, मैं वो पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, मैं वो बात नहीं करता, अब ये तो कह देते होते हैं। अब उस गंदे गटर में मरने वाले को कोई नबी समझता है तो समझे वो गटर का कीड़ा ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे नबी तो वो हैं जो चलते हैं तो अल्लाह का कुरान बनता है, जो बैठते हैं तो अल्लाह का कुरान बनता है, जो अपने असहाब में जाते हैं तो अल्लाह का कुरान बनता है, जब अपनी अजवाज में जाते हैं तो अल्लाह का कुरान बनता है, जब अपनी अजवाज में जाते हैं तो अल्लाह का कुरान बनता है, अपने असहाब के साथ जंग को जाते हैं तो अल्लाह का कुरान बनता है, जंगे यमामा पे जो है ना, आप जंगे बदर को देखें तो अल्लाह का कुरान बनता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जाते हैं तो अल्लाह का कुरान बनता है, मक्के की गलियों में टहलते हैं तो अल्लाह का कुरान बनता है, हुजूर जमीन पर चलते हैं तो अल्लाह का कुरान बनता है, आसमान की सैर को जाते हैं तो अल्लाह का कुरान बनता है, जहां जहां हुजूर कदम रखते हैं तो अल्लाह का कुरान बनता है। कायनात के अंदर हुजूर की शान को पहुंचने वाला कोई भी बंदा ऐसा हो जो हुजूर के बारे में बात करे तो कसम खुदा की अपने बाप, अपनी मां, अपनी बहन, अपने भाई के बारे में कोई बात करे तो बर्दाश्त कर लीजिएगा,
لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے، جہاں حضور کی عزت کی بات آ جائے، وہاں پر ایک ہی بات ہے کہ یہ مسئلہ اتنا نازک ہے، عالم کو بتایا جائے گا، اب ختم نبوت کا پرچم ہر سمت اٹھایا جائے گا، اب جنگ یمامہ کا منظر دنیا کو دکھایا جائے گا، یہاں بات ہے ان کی عزت کی، یہاں سر کو کٹایا جائے گا۔ یہ یاد رکھ لیں، حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو صرف مرنے کی بات نہ کریں، مارنے کی بھی بات کریں۔ ہم حضور کے لیے صرف مرتے نہیں ہیں،